اس وقت کوئٹہ میں شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ووٹوں کی خرید و فروخت کا بازار گرم رکھا ہوا ہے، بلیک میلنگ کر رہے ہیں، اور بلیک میلنگ بھی اس انتہا کی کر رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ ممبر کی اتنا ریٹ لگے گا۔ یہ کروڑوں میں لگائیں یا جتنی مرضی پیسے لگائیں، انشاءاللہ تعالی عمران خان یہ 5 سال پورے کرے گا، اور اللہ میرے کو منظور ہوا یہ شکست فاش کھائیں گے۔ اور میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ خوش اسلوبی سے یہ مسئلہ طے پا جائے، کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے کہ یہ ساری عمر پچھتائیں۔ 1 سال رہ گیا الیکشن کو، یہ نہ ہو یہ 10 سال لائن میں لگے رہیں، 10 سال سلیکشن کے پیچھے لگے رہیں۔ 1 سال الیکشن میں رہ گیا ہے، لیکن اب آپ نے عدم اعتماد کی ہے تو یہ انشاءاللہ عمران خان کے لیے اطمینان کی تحریک ہوگی۔ میں اگر اللہ کو منظور ہوا، ہم نے دیکھیں چمن میں بھی پورا نیا بائیو میٹرک سسٹم لگا دیا ہے۔ یہ بچیوں کے لیے، نیچے بیٹیوں کے لیے ایک مشین ہے۔ ڈی جی صاحب نے کہا میں ان کو آرڈر کرتا ہوں یہ 4 گاڑیاں چلائیں، ہر کونے کونے میں خواتین کو جاب دیں، اور خواتین کی اپنی گاڑی، اور قصوری صاحب اس کو ہیڈ کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر لیں، میں 5 منٹ سے زیادہ میں نے جی آپ نے کہا کہ ایم ایل اے کو خریدا جا رہا ہے، جب جہانگیر فریب کے جہاز میں لوگ بیٹھ کے آ رہے تھے تو اس وقت کیا تھا؟ وہ رضامندی سے آ رہے تھے، یہ لالچ سے آ رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو ضمیر فروش ہیں، وہ لوگ حکومت بنانے کے لیے آ رہے تھے، یہ مال بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ جی بیٹے، میں نے ابھی کم کیا ہے، میں لاجز میں احتراماً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھریٹس کا خطرہ ہے 2 بندوں کو، مولانا فضل الرحمان اور شیخ رشید کو۔ ابھی غفور حیدری صاحب نے زبردستی میرے ساتھ تصویر کھچائی ہے، میں نے اس سے کوئی سیاسی بات نہیں کی۔ میں نمبر 1 سے دوستی رکھتا ہوں اور نمبر 1 سے دشمنی رکھتا ہوں۔ پارلیمنٹ لاجز میں 60-70 آدمی گھس آئیں، کس کو کیا پتا 300 اور 65 یا 70 وہاں فیملیز رہتی ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں۔ اگر کسی کو نقصان پہنچ جائے تو یہ پتہ ہی نہیں 70 آدمی کون ہے۔ ہم نے مانسیرے میں بھی روکے ہیں، ہاں روکے ہیں، ہم نے مردان میں بھی روکے ہیں۔ اگر کسی میں ہمت ہے انصار الاسلام والوں کو تو الیکشن والے دن آ کے بتائیں، لگ پتہ جائے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہسٹری میں ہوا ایم این اے کے ساتھ جس طرح کا رویہ تھا پولیس کا۔ اب میں جواب دوں میرے بھائی، اگر آپ میری بات پہ یقین رکھتے ہیں، ایم این اے دونوں کمپنی کی مشہوری کے لیے خود گئے، ان کو بالٹی گوشت کھلایا وہاں پہ۔ غریب کو تو لتر پڑتے ہیں، ان کو بالٹی گوشت کھلایا، ان کو کہا چلے جاؤ آپ کی مہربانی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جاتے۔ دیکھیں نا، یہ میڈیا کی خاطر بھی تو لوگ اب سیاست آپ کے پاس آ گئی ہے، سیاست چوک اور چوراہے سے نکل کے ان کالے کیمروں میں آ گئی ہے۔ ان کی بڑی منتیں کی، وہ نہیں گئے۔ یس صاحب یہ بتائیں کہ اسمبلی کا اجلاس کب تک بلایا جا رہا ہے، ایک بات، اور دوسری بات اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، شیخ رشید اس میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور اگلا میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح، باقی کسی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں 5 ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں۔ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں سائے کی طرح، اور ان کے لیے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، عمران خان بطور وزیر اعظم اس نے کہا اگر میں سڑکوں پہ آ گیا تو زیادہ خطرناک ہوں، واقعی خطرناک ہے وہ۔ لاسٹ پر اچھا ٹھیک ہے، 2 کا بلاول کے خلاف مجھ سے کوئی سوال نہ ہو، میں خفا ہو کے چلا جاؤں، وہ بیٹیوں کی جگہ ہے۔ سر وزیر اعلیٰ، بلوچستان میں آپ نے جام کمال کی طرف اشارہ کیا ہے 5 ووٹوں کا، یا میں نے پنجاب کی سیاست کی بات کی ہے، میں صوبوں کی سیاست نہیں کرتا بھائی جان۔ اب آپ کے 2 سوال ہو گئے، اور بھی آپ بلوچستان آئے ہیں، یہاں پر بھی جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے مرکز میں آپ کے اتحادی ہے، چونکہ بلوچستان عوامی پارٹی میں اس وقت 2 گروپ ہیں، کوئی گروپ نہیں ہے۔ بلوچستان عوامی اتحادی پارٹی باپ کی بات کر رہے ہیں نا آپ، وہ ڈنکے کی چوٹ سے عمران خان کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन्होंने वोटों की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म कर रखा है। इंशाल्लाह इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, अपोजिशन को शिकस्त फाश होगी, अदम एतमाद इमरान खान के लिए इत्मीनान की तहरीक होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान ने भारतीय वजारत दिफा के बयान का नोटिस लिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अंदरूनी अदालती तहकीकात के फैसले पर अफसोस है। भारत को पाकिस्तानी हुदूद में गिरने वाले मीज़ाइल की किस्म और खुसूसियात को बयान करने की ज़रूरत है। भारत को मीज़ाइल की परवाज़ के रास्ते और रफ्तार की वजाहत करनी होगी। आखिरकार मीज़ाइल कैसे मुड़कर पाकिस्तान में दाखिल हुआ? क्या मीज़ाइल खुद को तबाह करने के तरीक़ाकार से लैस था? तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना है कि भारत को कुछ सवालात के जवाबात देना होंगे। क्या भारतीय मीज़ाइलों को मामूल की देखभाल के तहत भी लॉन्च के लिए रखा गया है? भारत पाकिस्तान को बर वक्त मुतला करने में क्यों नाकाम रहा? पाकिस्तान की जानिब से वाक़े के ऐलान वजाहत तलब किए जाने तक भारत ने तस्लीम करने का इंतज़ार क्यों किया? भारत बताए कि क्या वाकई मिसाइल को इसकी मुसल्लह अफवाज ने हैंडल किया था या कुछ दीगर अनासर ने? वाक़या भारतीय स्ट्रेटेजिक हथियारों से निमटने में संगीन नौइयत की खामियों, तकनीकी खामियों की निशानदही करता है। भारत का अंदरूनी अदालती तहकीकात का फैसला काफ़ी नहीं, क्योंकि मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में गिरा है। पाकिस्तान वाक़े पर हक़ाइक़ के दुरुस्त तयन के लिए मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा करता है। भारत को मिसाइल के हादसाती लॉन्चिंग के बारे में फौरी पाकिस्तान को आगाह करना चाहिए था। इस वक्त मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दो एटमी क़ुव्वतों के दरमियान जंग छिड़ सकती थी। ये इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है हिंदुस्तान ने, जितनी उसकी तंबीह की जाए कम है। चुनाचे दफ्तर खारजा में उनके एक्टिंग हाई कमिश्नर को मदऊ किया गया और पाकिस्तान ने अपना एहतजाज और अपनी तशवीश रिकॉर्ड कराई और मुतालबा किया कि हमें जवाब चाहिए कि ये क्या हुआ, क्या ये हादसा है, ये आपका टेक्नोलॉजिकल फेलियर है, ये आपकी बदनीयती है, ये जारियत है, ये क्या है? आपने इस हरकत से इस पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को तहबाला करने की कोशिश की है और मैं तवक्को कर रहा हूँ बहसीत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कि मुझे इसका मुनासिब जवाब मिलेगा। हमने जो सलामती काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान हैं उनको दफ्तर ख़ारजा बुलाकर ब्रीफ किया है। उसमें अमेरिका है, उसमें चीन है, उसमें रूस है, उसमें फ्रांस है, बरतानिया है। उन सब को हमने मदऊ किया है और अपनी तशवीश और ये जो एक दो एटमी क़ुव्वतों के मुकाबले के दरमियान एक झड़प का ज़रिया बन सकता था, हमने कहा है कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को, सलामती काउंसिल को इसका नोटिस लेना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो एविएशन अथॉरिटी है, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, SOPs हैं, उनकी खिलाफ वर्जी जो हुई है इसके बारे में उन्हें कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अब हिंदुस्तान कह रहा है कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का हमने ऑर्डर कर दिया है। हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है और बड़ा जो जिम्मेदार जर्नलिस्ट है, मैं आपको नाम भी दे सकता हूं, उन्होंने कहा है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से ये हरकत हुई होती तो इंडियन मीडिया आज आग बगोला होता। मैं पाकिस्तान के मीडिया से दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान के मामले पे सारा इंडियन मीडिया यकजा होकर हमारी खिंचाई करता है, हमारा पाकिस्तानी मीडिया हिंदुस्तान की इस नाजायज हरकत पर उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करना चाहिए, न सिर्फ कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करना चाहिए। अब ये मिसाइल आके गिरता है मियां चन्नू के पास। फर्ज कीजिए थोड़ा सा ये इधर गिर जाता तो मियां चन्नू शहर के ऊपर गिरता, और शहर के ऊपर गिरता गुंजान आबादी है, और वो जो अमवात होती
शहादतें होती, उसका जिम्मेदार कौन होता? हम किससे जवाब तलब करते? अगर जहाज में जो मुसाफिर जा रहे थे, अगर जहाज गिर जाता और वो मासूम फैमिलीज और जानें मुतासिर होती, उसका जिम्मेदार कौन होता? ये बड़े संगीन, ये एक भयानक एक कार्रवाई है और हमें मुतमईन किया जाए। हम मुंतज़िर हैं और बैन अक़वामी कम्युनिटी जो इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर, इंसानी हकूक़ की पासदारी करती है, आज उनकी आजमाइश है कि वो खामोश रहती है या इस मसले को टेक अप करती है। अगर उन्हें इंसानी जानों में दिलचस्पी है तो इस वाक़े को वो सरफ़े नज़र नहीं कर सकते। और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। पूरी कौम जानती है कि 26 फरवरी 2019 हिंदुस्तान ने ऐसी ही जारियत की थी। उनके लड़ाका तैयारे पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हुए, बालाकोट में बमबारी की और यहाँ से रुखसत हुए। 27 तारीख को पाकिस्तान ने उसका नपतुला मोहताज जवाब दिया। उनके 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए और अभिनंदन को चाय पिलाकर रुखसत किया। लेकिन अगर पाकिस्तान जिम्मेदारी का सबूत न देता 26 फरवरी को और इस वाक़े पे, तो हालात बिगड़ सकते थे। इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? ये सवाल है ये पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है और पाकिस्तान की आवाम को बैन अक़वामी बिरादरी से करना चाहिए और हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इसका हमें माकूल और मुनासिब जवाब मिलेगा। और फ़र्ज़ कीजिए, मान लिया कि आपकी नीयत ख़राब नहीं थी, हादसा हो गया, तो वो भी ख़तरनाक बात है कि क्या आपका सिस्टम इतना कमज़ोर है कि आप इस किस्म के हथियार रखते हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, कोई ज़िम्मेदाराना रवैया नहीं है, तो क्या आप इस काबिल हैं कि आपके पास ऐसे हसास हथियार हों? ये भी सवाल उठता है और इसका भी नोटिस लेना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवालात हैं जिनके जवाब का मैं मुंतज़िर हूँ और जब जवाब आएगा तो फिर पाकिस्तान अपना लाहेमल आगे पेश करेगा। अच्छा सर, भारत से डायरेक्ट कोई बात की है किसी वज़ीर ख़ारजा से या दफ्तर ख़ारजा? नहीं, हमने उनके जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं उनको दफ्तर ख़ारजा बुलाकर हमने अपना एहतजाज और अपनी तशवीश रिकॉर्ड करवाई है और डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है। बदू साहब, ये बताइएगा कि रशिया और जो यूक्रेन का मसला है, पाकिस्तान उसमें उनके सालसे के लिए कोई ऐसा कोई क्या प्ले, क्योंकि आपका ये विजिट भी हुआ वहाँ पर, इसके बारे में कुछ बताएंगे पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि गुफ्तो शुनीद से, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ये मसला हल हो। मसला संगीन है, मसला मज़ीद बिगड़ सकता है और ये यूक्रेन से आगे बढ़ सकता है। मुझे इल्म में है कि बहुत से ममालिक इस पे कंसर्न अपनी शो कर चुके हैं और तस्वीर के 2 रुख हैं। एक तरफ बहुत से यूरोपियन ममालिक हैं, मिसाल के तौर पे पोलैंड है, फिनलैंड है, हंगरी है, रोमेनिया है, जो साथ साथ लगते हैं, वो परेशान हैं। उन्हें अपनी, और बहुत से यूरोपियन ममालिक हैं, उन्हें अपनी सिक्योरिटी पर तशवीश है और वो समझते हैं कि ये जो जारहाना कार्रवाई है उससे उनकी आबादी और उनके मुल्क मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी तरफ रूस समझता है कि जिस तरह नेटो की एक्सपेंशन हो रही है ईस्टवर्ड्स, वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करती है और सीरियस मामला है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।